हाय, दिस इज़ द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस सीरीज और अगर आपने कल का वीडियो ऐसे देखा है देन यू नो दैट आवर टुडेज गेस्ट हैज़ टू बी अ स्टोरी टेलर and I'm very, very excited to bring back the most loved person on this channel. Frankly speaking, I'm her fan too, and she is a force to be reckoned with. Yes, our today's guest is none other than Vanika Santani, a multi-talented individual who has made a name for herself as a storyteller and a social media influencer. वो लड़की जो एक कंजर्वेटिव मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है, लेकिन उसने कभी भी अपने ख्वाबों को रिस्ट्रिक्ट होने नहीं दिया। इसीलिए जब 2021 में मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे सोलो ट्रैवल करना है, तो उनकी भी नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स की तरह सांसें रुक गई। लेकिन जब मेरे कन्विक्शन ने उनकी फिक्र के आगे हार मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने भी मान ही लिया कि हमारी छोरी खुद का ख्याल तो रख ही नहीं लेगी। रख लेंगे। With over 3.7 lakh followers on social media, Vanika has captivated audiences with her amazing stories and poetry, two of which have received over 3 million views on YouTube. On the other hand, her traveling venture, Pink Experiences, is a hit. In its very first year, she hosted more than 600 people. As a storyteller, Vanika offers a unique perspective on the art of storytelling, and her stories provide us an insight into her own worldview. इसीलिए आज के एपिसोड में मैंने वनिका से यही बात की है कि उसका आइडिएशन प्रोसेस क्या है, स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर ना घबराने का राज क्या है। वन थिंग आई रियली एडमायर अबाउट हर इज दैट चाहे अंदर से उसके कितने इश्यूज चल रहे हो, बट व्हेन द कैमरा ऑन्स शी इज द मोस्ट फियरलेस पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस एंड वर्कड विद। कंप्लीटली नो इनोवेशंस। कहते हैं स्टोरी टेलर्स आर ट्रुथ सीकर्स, सो लेट्स फाइंड आउट हाउ वनिका सीक्स हर ट्रुथ and how she trained herself in this beautiful craft of storytelling. आप 12 के बाद क्या करेंगे आप नहीं तय करते, आपका मोहल्ला तय करता है। हर चीज के पीछे एक क्राफ्ट वो क्राफ्ट सीखना जरूरी है। You have to question every single thing. I don't want to compromise with what I want to do. What is my dream? Two greatest gifts life has given you. One is the freedom to fail and the ability to say, I don't know. Creativity means I'm going to try out something. Maybe it will succeed, maybe it will fail. Knowledge is free and it's yours to inherit. Hi guys, hello, welcome to the new episode of Frankly Speaking, or is it Creative Shots? I don't know. But again, you see the face that you really liked. I know you were waiting for me. I know I'm the best. And today I'm very excited to talk again on Pink City Podcast. Are you excited to hear me too? Yes, I am. तूने ये तो बोला नहीं, I am a star, guys. I'm a star, guys. I am the best. I'm a star. I'm very famous, guys. From the last time you listened to me, I'm very famous. I'm a star. I am very rich, and I'm like the sensation that you are looking for. I'm the best, guys. Be like me. ये मैं में डाल दूँ। वेलकम बैक, वेलकम टू पिंक सिटी पॉडकास्ट प्रेजेंट्स क्रिएटिव शॉट्स। आज तुझे मेरी वजह से लोगों की प्राइवेसी में घुस के उनसे सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे, बिकॉज वो काम आज मैं करूंगा तेरे साथ। It's not like I did not like it. मुझे बहुत मजा आया था वो करने में। तो if I get an opportunity to do that all over again, I would like not even think once about it. Yeah, we should. वापस करना चाहिए, बहुत लोग बोल रहे हैं। It was fun, but today we're gonna take a deep dive in your journey, in your professional life, that how you became Kaira, the storyteller. So, shall we begin? Yes, of course. Yes. Like, So, let me, जो लोग देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको ये बता दूं कि फ्रैंकली स्पीकिंग का आइडिया तो मुझे बहुत लेटर ऑन आया। इस पॉडकास्ट का आइडिया पहले आ गया था और वनिका को मैंने फर्स्ट टाइम अप्रोच 2020 में इस पॉडकास्ट के लिए ही किया था कि आई वांट हर टू बी एज अ गेस्ट, एंड वी हैड अ 3 hour लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। और उसके बाद जब कुछ महीने बाद मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग का आइडिया आया, देन आई कॉन्टैक्टेड हर एंड सेड कि आई एम थिंकिंग टू मेक समथिंग लाइक दिस एंड यू आर द परफेक्ट फिट फॉर इट। और अगर वो 3 घंटे की कॉन्वर्सेशन नहीं हुई होती तो मुझे नहीं पता चलता कि ये इतनी करेजियस और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो लोगों की प्राइवेसी में घुस के उनसे सवाल पूछ सकती है। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो आई हैव रेड ऑल योर कमेंट्स कि यार सब लोग बहुत इंस्पायर होते हैं तुझे देख के, तेरी करेज देख के, तेरा स्ट्रेंथ देख के, द वे यू आर अनअपोलोजेटिक, saying everything. So how to be confident like Vanika? How not to take ourselves so seriously?
मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना जब भी किसी चीज को करते हैं, सो कंसिडरिंग द वर्ल्ड एंड द प्लेस दैट वी आर लिविंग इन करेंटली, यहाँ पे सक्सेस को और जस्ट बीइंग डूइंग थिंग्स राइट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. एंड व्हेन वी कीप दैट इन माइंड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, वी बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ डूइंग दैट. हमें बचपन से ना कभी गलतियां करने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता. हमें हमेशा बोला जाता है कि यार गलती मत करो, जो चीज करो वो सही करो. उसके चक्कर में क्या होता है ना, हमारे दिमाग में भसड़ मच जाती है. एवरी टाइम वी आर डूइंग समथिंग, वी आर इवैल्यूएटिंग टू मच. बाय नेचर वी आर ऑल कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग्स, है ना. हम जो अगर अपने मन की सुन के कर रहे हैं, बिकॉज वी वर सपोज टू बिलीव इन आवर इंट्यूशन, दिस इज व्हाट आई फील, कि हम लोगों को कॉन्शियस होना दुनिया ने सिखाया है. कंडीशनिंग. जबकि हम, हाँ एग्जैक्टली, कंडीशनिंग है. हम तो वी वर सपोज टू बी कॉन्फिडेंट एंड पीपल हु बिलीव्ड इन व्हाट दे वर डूइंग. हमें करना तो वही था, बट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ इट हम लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, ओवर इवैल्यूएट कर जाते हैं. तो मैं भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ और मैं आई टेक माई सेल्फ टू सीरियसली एंड ऑल ऑफ इट हैपेंस. बट आई थिंक कि जब मैं कैमरा के सामने जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है दैट इन दैट मोमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, मेरा आर्ट मुझे वो फ्रीडम देता है कि मैं कुछ भी कभी भी बन सकूं. क्योंकि रियल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर जजिंग मी, बट व्हेन आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड इट्स सो आयरॉनिकल दैट आई एम सेइंग इट, कि मुझे लोग सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे जज करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता. बट व्हेन इट कम्स टू माय पर्सनल लाइफ, आई एम अ लिटिल कॉन्शियस. बट आई थिंक माय आर्ट गिव्स मी माय लाइक दैट स्पेस, जिसकी वजह से मुझे वो फ्रीडम मिलती है कि मैं कॉन्फिडेंट बन सकूं, मैं जो मन में आए वो कर सकूं. और इसीलिए तो मुझे मेरा आर्ट इतना ज्यादा प्यारा है. आई कैन रिलेट टू इट, बिकॉज ऐसे मैं भी बहुत कॉन्शियस हूँ अपनी म्यूजिक चॉइसेस को लेके, बिकॉज 90s का किड होने की वजह से आई हैव दैट गोविंदा एंड सलमान के जो 90s का म्यूजिक है. बिकॉज वो ऐसा नहीं है कि मैं सुन नहीं सकता सबके साथ, एंड देयर इज अ होल लॉट बॉलीवुड कम्युनिटी आउट देयर हु सेलिब्रेट दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, बट कहीं ना कहीं उसको मैं सबके साथ सुनना एंजॉय नहीं करता. बट द मोमेंट आई प्ले दैट इन माई कार और अकेले, देन आई बिकम फ्री, देन आई एम नॉट, मुझे फिर वो इनहिबिशंस नहीं रहते. बट ऐसे ही कुछ लोग मिल जाते हैं. when I had my dance group, जब मैं डांस करता था या कॉलेज में थे, तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके साथ आप वो सेम वाइब शेयर करते हो. बट एवरीवन doesn't share that same vibe with you कि हाँ यार तुम unapologetic होके नाच सको या तुम unapologetic होके कुछ भी बजा सको, because people will judge you. But point is कि हमें ये judgment नहीं करनी चाहिए. आज हम ये बात तो कर रहे हैं कि यार हमें फील होता है that हमारे inhibitions हैं और लोग हमें जज करेंगे, ये हमारे ब्रेन में है. बट पॉइंट इज द जर्नी ऑफ एन आर्टिस्ट इज टू कि इसको ओवरकम कैसे करना है. एग्जैक्टली. और पता है, जिस भी जगह पे जिस भी चीज में आपको वो फ्रीडम मिल रही है, सबसे पहले बिगिन ही इस तरीके से करना है कि आप उस फ्रीडम को यूटिलाइज करो. हम ना ऐसा सोचते हैं, जो एक लाइन है कि हम हमेशा मुश्किल रास्ता चूज करते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ चूजिंग द इजी पाथ. आई फील इफ आई फील फ्री समवेयर एंड आई टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, कहीं ना कहीं जो दूसरी जगह पे मैं जज्ड फील कर रही हूँ वो भी मेरी लाइफ में थोड़ा न्यूट्रल होने लगेगा. बट दैट विल ओनली हैपन इफ आई फोकस ऑन व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, क्योंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस देगा और उस कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ में दूसरी जगह पे भी स्प्रेड अपने आप हो जाएगा विद टाइम. ये सब सारी चीजें है ना जो मोटिवेशनल स्पीकर जो चीजें बोलते हैं कि भाई ट्राई टू हार्ड, वर्क फास्टर, बी अ हसलर, आई डोंट बिलीव इन इट. It might work for a lot of people, but I personally believe कि मेरा comfort, मेरा peace, मेरा जो life का living वाला phase है, मेरा सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं जीने आई हूँ यार. ये बाकी सारी success and everything is just a part of it. I want to live first and hustle later. Got it. Hustling is a part of life, but it comes secondary to me. आज मेरा मन नहीं है करने का, मैं नहीं करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. एंड आई माइट बी वेरी अनसक्सेसफुल फॉर इट, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु आर सो सक्सेसफुल एंड येट दे आर नॉट लिविंग देयर लाइव्स. देयर इज नो पॉइंट इन देयर लाइफ वेयर दे फेल्ट ना अब हम सक्सेसफुल हो गए, अब हम एकदम जिएंगे. सो आई वांट टू बी ऑलवेज एट अ पॉइंट वेयर आई एम लिविंग इट थॉरली, और मैं पूरी तरीके से एंजॉय कर रही हूँ जो भी मैं कर रही हूँ, अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट मेक्स मी स्टे ट्रू टू माई आर्ट फॉर्म, to just myself. Right. एक चीज है, एक तरह का वर्ल्ड व्यू है, एक तरह का देखने का नजरिया है लाइफ को, कि अगर आप सच में फ्रीडम से जीना चाहते हो तो पहले, और सक्सेस चाहते हो उसमें भी,
तो फेल होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये फेल वो वाला फेल नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि हमने काम किया और हम फेल हो गए। ये वो फेल है जब आप सोसाइटी के सामने फेल हो जाते हो। Yeah. जब आप मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हो, आपने बहुत कोशिश कर लिया, आपके पेरेंट्स ने भी आपके साथ आपको ट्यूशन भेज दिया, आपको सब्जेक्ट, अब आप मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे, अब लोगों ने आप पे गिव अप कर दिया, अब लोगों ने आपको रेस, सोसाइटी की रेस से उठाकर साइड में रख दिया, अब आप फेलियर हो, अब आप जो मर्जी करना करो, पीपल डोंट केयर अबाउट इट, एंड देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन व्हाट यू वांट टू डू। सिमिलरली वो जो एक कोर्स ऑफ लाइफ दिया हुआ है, आप पहले उसमें फेल हो जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के फेल हो जाओ, बट इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, आपको फेलियर का ठप्पा लगेगा कि यार ये बंदा तो नहीं, ये तो ना टाइम पे शादी कर रहा है, ना टाइम पे बच्चे कर रहा है, ना टाइम पे जॉब लग रहा है, ना इतना कमाता है, ये फेलियर है। एंड देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल बिकॉज नाउ यू आर फ्री। सोसाइटी अब आपको कुछ नहीं बोलती, बट द मोमेंट यू कीप सैटिस्फाइंग सोसाइटी ना, you cannot go your own individualistic way because they will not allow you to go that. And artists के लिए वो बहुत जरूरी है। It's like जब आप when you have something to lose, you're scared to lose it. But the moment you lose it, you don't have any fear. And without fear, and understanding that fear, without fear, you're able to kill it in the world. You are able to do whatever you want because you have nothing to lose. Now coming to your storytelling and poetry, let me first tell everyone your body of work. मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है, इसका बहुत लंबा body of work है, almost 20-25 चीजें हैं। Let me first tell. स्कर्ट का राइट साइज, देन हम ऐसे देश में रहते हैं, फिर माई नेकेड बॉडी, हम दोस्त ही ठीक थे, उफ तुम्हारी स्माइल भी ना, माँ प्रेग्नेंट हूं मैं, इम्परफेक्ट हो तुम भी, मम्मी इरिटेट मत करो, अच्छे घर की लड़की, सपने या अपने, मैं झूठी हूं, आई कांट डू दिस अमन, ब्रेकअप के लिए थैंक यू, अब भगवान कहाँ है, सारी नॉट सॉरी, ब्रेकअप ही तो है, लॉन्ग डिस्टेंस दोस्ती, कमला आंटी, बिफोर यू जज मी, विच इज ऑल्सो ऑन हॉटस्टार, एंड पापा को नहीं बताना एंड अ संस्कारी गर्ल आर योर मोस्ट पॉपुलर वीडियोस, जिनपे 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। कमेंडेबल, क्या बात है। इसलिए सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूं मैं कि हाउ डिड यू स्टम्बल अपॉन दिस आर्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, बिकॉज ये कहीं सिखाया तो नहीं जा रहा, ये किससे पहले कहीं था भी नहीं, और जब तूने ज्वाइन किया तब क्या माहौल था, वेयर वाज दिस स्टोरी टेलिंग कम्युनिटी इन देयर ओन जर्नी? क्योंकि मेरी पर्सनल थ्योरी है, कोई सीरियसली ना ले। मुझे ऐसा लगता है 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो खुद को बेस्ट मानते हैं, एक वो जो दूसरों को बेस्ट मानते हैं। मैं हमेशा से फर्स्ट टाइप की रही हूँ। मुझे पता है मुझे घंटा कुछ नहीं आता, पर फिर भी मैं बेस्ट हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब 2018 में मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी, व्हेन आई वाज टेकिंग अ मेजर लाइफ डिसीजन, और मुझे लगा कि मैं गलत जा रही हूँ, एंड फॉर मोटिवेशन आई वेंट ऑन YouTube एंड आई सॉ दिस स्टोरी टेलिंग वीडियो। आई वाज लाइक ये क्या है, आई कैन डू दिस, and I've been doing this। मतलब मैं अपने दोस्तों में, अपने the NGO kids that I used to teach, मैं हर जगह कहानियां ही तो सुनाती हूँ, मुझे तो बचपन से आदत है कहानियां सुनाने की, तो मुझे लगा ये बड़ी बात नहीं है। and that is why 1 month later when I got an opportunity to apply for an open mic, I did, and apparently मेरा सिलेक्शन भी हो गया। उस टाइम पे मुझे पता था मैं बेस्ट हूँ, तो सिलेक्शन होना तो था ही। This was in Mumbai or in Jaipur? This was in Bombay. Bombay. मतलब बहुत रैंडमली ये चीज हुई थी कि मैंने उनको अपना एंट्री भेजा एंड दे सेड यू आर रिजेक्टेड। तो मैंने कहा वाह यार, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको रिप्लाई कर रहा है। सो आई आस्क्ड देम कि करना क्या है एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली डू यू वांट मी टू राइट द स्टोरी। दे टोल्ड मी पॉइंटर्स, आई रोट अ स्टोरी अकॉर्डिंग टू इट एंड आई गॉट सिलेक्टेड। सो आई वाज लाइक, मुझे पता ही था, इफ आई एम टोल्ड व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू देन आई कैन डू इट। सो वेरी कॉन्फिडेंटली आई वेंट फॉर द इवेंट। मेरा सबसे पहला परफॉर्मेंस था, मैं गई वहां पर और मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ, एंड आई सॉ 2 people yawning in the audience. I was like, okay, कोई बात नहीं, I still continued. मैंने तो क्या किली कर दिया उस दिन, मेरे मन में ऐसे लग रहा था मेरे से बेटर कोई नहीं है। एंड apparently after the performance 2 people clapped, और उसको देख के और लोग को शर्म आई, फिर सारा 25-30 लोग क्लैप करने लगे, तो मुझे लगा ऑडियंस ही खराब है। ठीक है, मेरे को अपनी कमी नहीं थी, ठीक है, ऑडियंस ही खराब है ना। पर उसके बाद आई सॉ अदर पीपल कमिंग ऑन स्टेज, हेली शाह, महक मिर्जा प्रभु, राकेश तिवारी, ऑल दीज आर लाइक बिग पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स। ये लोग जब आए, इन्होंने जब अपनी कहानियां सुनाई, मेरे को लगा ओ माय गॉड, ये तो क्या बढ़िया चीज है। मतलब देयर इज रिदम टू इट, देयर इज राइम टू इट, द वे दे आर टेलिंग अ स्टोरी इज वेरी एंगेजिंग, दे हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, एंड मतलब ये करके कैसे कहानी सुना देते हैं, मेरे को आता नहीं है। And that is when I realized that even though I'm not the best right now, but I am the best, so I will be the best eventually once I learn it.
उसके बाद घर जाके मैंने सारे वीडियोस देख लिए, मतलब 15-20 दिन तो मैं सारे वीडियो स्क्रॉल ही करती रही एंड आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी। वहां पे मैंने पूरा एकदम राइम स्कीम से और जितना मैं कॉपी कर सकती थी ना दूसरों को, उतना कॉपी करके मैंने वहां पे परफॉर्म किया। इवन दैट डिड नॉट गो वेल एंड आई ट्राइड फॉर द थर्ड टाइम। दिस टाइम आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, सो आई वाज लाइक ओह शिट। अभी ऐसा था कि चलो ठीक है, मतलब मे बी इट्स नॉट फॉर मी, बट देन आई एम अ वेरी स्मार्ट ह्यूमन बीइंग, ओके। आई थिंक आई हैव कमेंडेबल मार्केटिंग एबिलिटीज। तो जयपुर में इवेंट था और उस टाइम पे मैं भी दिवाली की छुट्टियों के लिए जयपुर ही आ रही थी। तो मुझे लगा कि अगर जयपुर में मैं जयपुर के बारे में एक कहानी लिखूंगी तो ऑडियंस सुनने को तैयार होगी और इन लोगों को भी अच्छा लगेगा, है ना। Like from that business point of view, this makes sense. So they will take my story. So I wrote a story specifically on Jaipur. I was like, this makes sense. यही करते हैं। और मैंने स्टोरी लिखकर भेजी तो of course they liked it and then they said कि हमें ना आपका नरेशन में प्रॉब्लम है, स्टोरी आप अच्छी लिखकर आते हो हमेशा, आपकी मतलब टेलिंग में प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। So that time I practiced that story over 90 times. I still have 90 voice notes. जिसमें से कम 30 वॉइस नोट मैंने उस टाइम पे कोपल खन्ना जो टे पटेल की फाउंडर है उसको भेजे थे कि, और वो मुझे कहती थी, मैंने कहा बिगनिंग में ऐसा जा रहा है, बीच में ऐसा जा रहा है, लास्ट में ऐसा जा रहा है। लाइक 90 टाइम्स आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ मेनी, मतलब हाउ मच एफर्ट इट टुक, बट देन आई वाज लाइक नाउ आई एम फुली प्रिपेयर्ड, नाउ आई एम गोइंग टू किल इट। मैं गई वहां पर अपनी मम्मी को लेकर साथ में और मम्मी ऑडियंस में बैठी हूँ और मैं स्टेज पे जाती हूँ एंड आई एम सो प्रिपेयर्ड। 90 times I've tried that story. I'm so prepared. I forget my entire story on stage. Seriously? Yeah. Now I'm standing there and I'm like कि अब मैं क्या बोलूं? तो मैंने सोचा मम्मी आए तो बेइज्जती तो नहीं करवा सकते, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। Now the story is mine. I knew what happened to me, right? और वो कहानी मेरी है तो किसी को मैं कहानी सुना सकती हूँ ना, even though I have not written that story. So I started telling in the most natural, unfiltered way, and apparently this time the audience was enjoying. And the moment audience started enjoying, I started enjoying, जिसकी वजह से मुझे और confident feel हुआ and I did wonders. I remember that was the first time I'm talking about Pani Puri और अमनदीप ख्याल जो कि एक बहुत बड़ा स्टोरी टेलर है, he is snapping in the audience and I'm like, oh my god, ये क्या लोचा है। Everybody is enjoying, everybody is laughing, and that is when I realized कि all this while I was trying to copy people, I was trying to be inspired by people, जबकि story telling में आपको अपना तरीका ढूंढना होता है। It's about you telling a story in the most natural way that comes to you. This reminds me of your tweet about escaping competition through authenticity. It sounds like part of this is a search for who you are. It's both a search and a recognition, because sometimes when we search our egos, we want to be something that we aren't, and our friends and family are better at telling us actually who we are, or looking back at what we've done is a better indicator of who we are. Peter Thiel talks a lot about how competition is besides the point. It's counterproductive. We're highly mimetic creatures. We copy what everybody else is doing around us. We copy our desires from them. If everyone around me is a great artist, I want to be an artist. If everyone around me is a great business person, I want to be a business person. Everybody around me is a social activist. I want to be a social activist. That's where my self-esteem will come from. You have to be a little careful when you get caught up in these status games that you end up competing over things that aren't worth competing over. The way to escape competition is to just be authentic to yourself. If you are fundamentally building and marketing something that is just an extension of who you are, no one can compete with you on that. This is easiest to see in art. Artists are by definition all naturally authentic. But even entrepreneurs are authentic. Who's going to be Elon Musk? Who's going to be Jack Dorsey? These people are authentic, and the businesses and products that they create are authentic to their desires and their means. So authenticity naturally gets you away from competition. It doesn't mean that you necessarily want to be authentic to the point where there's no product market fit. It may turn out you're the best juggler on a unicycle, but maybe there just isn't that much of a market for that, even with YouTube videos. So you got to adjust that somehow until you find product market fit, but at least lean towards authenticity, towards getting away from competition, and competition automatically leads towards copycatting and often towards just playing completely the wrong game. So ideally, you want to end up specializing in being you. वो लोग अपनी अपनी जगह पर बेस्ट इसलिए हैं because they're staying true to their way of telling a story. And if
if I want to do anything, I can learn their craft thoda bahut. I cannot copy their craft. I have to develop my own thing. स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते. I have to figure out my own way. और तभी मैंने एक लाइन लिखी थी कि अगर हो जाऊंगी मैं उनकी तरह तो रहेगा नहीं कोई मेरी तरह. और that clicked with me, but उसके बाद उस दिन के बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेप्रिशिएट हो गया था एकदम. तो मैंने 1 साल तक परफॉर्म नहीं किया. I was like मेरे लिए नहीं बना. That was also maybe a coincidence. ऐसे ही हो गया होगा वो. और I totally gave up on storytelling. And storytelling, and you are like sometimes the relationship that you share with your art is similar to love. ऐसा बोलते हैं ना, when you look for love, love doesn't find you, है ना? And when you stop looking for love, love comes to you, है ना? तो similarly that time मैंने एक story देखी. टेप पटेल में क्यूरेशन का जॉब खाली था 1 महीने के लिए, बिकॉज उनकी क्यूरेटर के एग्जाम्स थे. शी वाज गोइंग आउटसाइड, सो दे नीडेड रिप्लेसमेंट फॉर जस्ट 1 month. एंड दैट टाइम आई थॉट आई वुड अप्लाई फॉर इट, क्यूरेशन, है ना? और मैंने बहुत ही रैंडम तरीके से चांस मारा, और अपेरेंटली दे डिड नॉट हैव कैंडिडेट्स, और आई सीम्ड लाइक अ प्रॉमिसिंग वन, तो मेरे को सिलेक्ट कर दिया. Now that time I remember I used to go every day to their office, and my job was very simple. I had to sit on a laptop, read people's stories, and tell them कि कौन सी story मुझे as an audience, as a normal lame person पसंद आ रही है. मुझे इतना enthusiasm था ना उस job के लिए that I used to read 25-30 stories in a day, and Kopal used to be like तुमने इतनी जल्दी stories पढ़ ली, how are you so fast? And because मेरे अंदर वो newness थी, मेरे अंदर ये भी था कि I had also developed an interest in understanding the way people were writing their stories, the kind of incidents that they were sharing, और उसने मुझे बहुत help किया. और तब I remember we were curating for a show, और कोपल ने कहा कि वनिका, do you have any story that you would want to share? नहीं, उसने कहा नहीं, basically मैंने लिख कर दिया था उसे. And she said कि ठीक है, you perform this. And you know, this time Kopal was not coming. Now this is a secret that I would want to share. कि जब कोपल नहीं होती ना तो मुझे डर कम लगता है. तो कोपल नहीं थी, तो मैंने स्टेज पर गई and I entirely forgot the script. ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट के पॉइंटर्स रख लिए थे, पर मैंने डिसाइड किया कि I won't go with the script. I will go as the flow would come to me. And that video got recorded. उसके बाद and in that particular performance also I was very fumbling, और मैं बहुत डरी हुई थी. उसके बाद भी the performance impact was too much. मैं जब वापस आई तो मुझे कई लोगों ने बोला कि my performance was very touching. Helisha, who I was inspired from, है ना, उसने मेरे को हक किया, and she said, Vanika, it's not about how perfectly you say a thing, it's about what you make the other person feel when you're telling a story. And that clicked with me, and I thought कि यार अब मुझे ये करना है, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे ये करना है. It's not about being perfect, it's about narrating a story. उसके बाद मैंने 2-3 किए, और मार्च में मेरा पहला वीडियो आया, and it did wonders on internet. तो सबको ऐसा लगने लगा कि वनिका का फर्स्ट वीडियो वायरल हो गया, बट ऐसा नहीं था. उसके पहले there was so much rejection that I had faced for like 1.5 years. और उसके बाद दिक्कत ये हुई कि उस टाइम पे कोविड आ गया, तो मैं ऐसी थी, I had just started my journey and then I was back at home from Bombay. अब मेरे को पता नहीं है मैं क्या करूँ. बट अगर वनिका को कोई चीज करनी है ना, ये तो मैंने अपने बारे में जान लिया कि मुझे कुछ करना है तो करना है. Even if it makes me the craziest person on earth, if I want to do it, I'll do it. और अगर मेरा कोई चीज करने का मन नहीं है तो मेरे को इस दुनिया के सारे पैसे दे दो, मेरे को इस दुनिया का सारा इंथू दे दो, मैं नहीं कर पाऊंगी. So that time, COVID के टाइम पे I started sending stories and they said कि live events तो पता नहीं कब होंगे, क्या करे. So I was like, I'll record the story on my own. So that time in Jaipur during COVID, I used to do the production by my own. ठीक है, I used to write on my own, record on my own, handle everything on my own, and then send the story to Tate Patel, who used to publish it online. So that time I was going out and beyond to get a story get released. और दूसरे लोग ये नहीं कर रहे थे.
everybody else was waiting for live events and I made it happen for myself. Got it. So that was the place where I took an edge over other people. And that is when I enjoyed and I grew in the entire thing. Storytelling still I feel is not like a place where things have, हमारा scene इतना strong नहीं है as compared to comedy, music, poetry. क्योंकि stories हर कोई सुनाता है. Storytelling is not a new form because a teacher is doing storytelling, a doctor is using a story to explain you something. Everybody is telling you a story. And TED Talks are a way of telling stories. Josh Talks are a way of telling stories. Everywhere there are stories. So, इसीलिए हमारा सीन अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. और स्पेशली नॉन फिक्शन स्टोरी टेलिंग जो मैं करती हूँ, फिक्शनल स्टोरी टेलिंग जो है जिसमें आप कैरेक्टर्स बना के परफॉर्म करते हो, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. उसको भी एक तरीके से थिएटर में काउंट करते हैं. पर जो मैं करती हूँ नॉन फिक्शन, अपनी जिंदगी को निचोड़ के कहानियां निकालना या फिर दूसरों की लाइफ से इंस्पायर्ड होके रियल लाइफ स्टोरीज को बनाना, वो चीज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. बट आई फील दैट I never know if I'll be able to make that contribution. I might be able to make that contribution to this field, maybe, or somebody else would. But I've realized कि आप थोड़ा बहुत भी करते हो ना, उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. True, 100%. मैं यहाँ पे मैंने जैसे पूरी बात सुनी तो मुझे बहुत सारे पॉइंटर्स बढ़िया लगे. विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल, तूने कहा कि मैं मार्केटिंग में अच्छी हूँ, मुझे पता था कि मुझे जयपुर के बारे में कहानी लिखनी है, बिकॉज जयपुर में जाके जयपुरी कहानी बिकेगी. दिस इज समथिंग विच बिजनेस पीपल सेज कि कुछ लोगों के पास इनहेरेंट टैलेंट होता है टू गेट अपलॉज. हमें ये समझ में आता है कि तालियां कैसे बजवानी है, क्या चीज कहाँ बिकती है, एंड इट इज ये होने लगता है जितना आप स्टेज पे समय बिताने लगते हो. मुझे भी समझ में आता है कि कहाँ पे कौन सा गाना चलेगा या क्या किस तरीके से एडिट करेंगे जिससे कि ये चीज अपलॉज क्रिएट करेगी. And I also, that's why we could relate and we could create that series also because we were on a sync immediately. हमने इससे पहले काम नहीं किया. In fact, I was telling someone the other day saying, I love working with brand teams where I write ads now. I love working with brand teams where somebody on the brand team has done some sort of an artistic skill in their life. कोई poet हो, कोई drummer हो या कुछ भी हो, क्योंकि उनको पता है ऑडियंस के सामने एक वाह कैसे बुलवाना है. Correct. Right? So once you know it in one field, it becomes easier for you to judge what is good in another automatically. राइट, यू सी म्यूजिशियन और कमेडियन को साथ में बैठा हो, एक वेवलेंथ पे रहते हैं क्योंकि दोनों को पता है कि ऑडियंस से वाह कैसे निकलवाना है. तो अगर आपको ऑडियंस से वाह कैसे निकलवाना आता है, यू आर ऑटोमेटिकली अ बेटर जज ऑफ एन आइडिया एज वेल. राइट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग द आइडिया, इट्स आल्सो अबाउट जजिंग. नेक्स्ट थिंग इज जो तूने जुनून की बात करी कि अगर पहले तो आपको ये समझ में आता है कि अपलॉज कैसे लेने हैं, घुसना कैसे, फिर आप में इतना जुनून है कि आप आगे बढ़ के खुद से एफर्ट लेके अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और काम कर रहे हो. यू आर सेल्फ मोटिवेटेड. सो दैट्स अनदर बिगेस्ट क्वालिटी. एंड थर्ड इज यू ओवरकम फियर बाय कि कोपल, मुझे अच्छे से पता, मैं कोपल से मिला नहीं हूँ, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग के शूट पे सबसे ज्यादा अगर बात हो रही थी वो कोपल की हो रही थी कि हाउ शी हैज गिवन यू लॉट ऑफ फीडबैक बट आल्सो हाउ यू आर स्कैर्ड ऑफ हर. एंड जैसे तुमने कहा कि तुमने उनको 90 टाइम्स भेजा एंड शी रिस्पॉन्डेड, सो यू हैड अ kind of a friend, kind of a mentor who was guiding you, then you worked under her, you created, and then she gave up you opportunity also to do that. So that all things come together ना. एक आपका स्किल है, एक आपका जुनून, और एक आपके पास एक मेंटर या फ्रेंड है जो आपको लेके जा रहा है, pushing you hard. And this is how I'm figuring out कि you were able to enter the scene. Enter the scene. Yes. Nice. So now, as you say, it's a craft that you have learned over the period of time. But ऐसा तो नहीं है ना कि ये craft कहीं सिखाया जा रहा है, कहीं कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा, कहीं इसके कोर्सेज नहीं हो रहे. यू हैव टू लर्न इट ऑन योर ओन. एंड ऑफ कोर्स तेरी जितनी प्रोग्रेस हुई है पिछले 1 साल 2 साल में, सो ऐसा तो नहीं है कि 100% तूने कर करके सीखा है या 100% तूने अपने पीयर्स के फीडबैक से सीखा है. समथिंग यू गॉट फ्रॉम योर ओन जर्नी व्हिच यू हैव बीन लिव्ड, तेरे ऑब्जर्वेशंस, तेरे एक्सपीरियंसेस, तेरे जीन्स या तेरे स्कूल की लर्निंग जो भी रही, और कुछ तूने जब काम शुरू किया ऑन द जॉब अपने पीयर्स का फीडबैक और ये सब करके. सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट कितना क्राफ्ट तुझे पहले से तूने ट्रेस बैक किया कि तेरे पास था, और कितना तूने ओवर द पीरियड टाइम लर्न किया जिससे कि आज एक प्रोफाउंड स्टोरी टेलर तू बन गई. I think the only thing I had was courage and interest in stories. मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरे स्टोरी टेलर्स अपना आर्ट फॉर्म करते ही नहीं तो शायद आज मैं स्टोरी टेलर बनती नहीं,
किसी एक इंसान ने अपना ख्वाब चुन के उसके ऊपर काम करने का सोचा, इसीलिए आज मैं एक ख्वाब देख पाई. तो what I learned from them is this is a profession, this is what I can do, this is something that I can work hard on, and what is the way for it, like going to open mics, performing in space. तो जितना भी मटेरियल पार्ट था वो सब मैंने उनसे सीखा. स्टोरी टेलिंग के बेसिक्स जो थे, जैसे कि ऑडियंस को एंगेज करना रहता है, किस तरीके से कहानी का स्ट्रक्चर होता है, और कैसे मतलब एक कहानी को पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो तरीका था वो मैंने उनसे सीखा. पर कहानियां, जो उसका सोल है, उसका हार्ट है, वो मैंने खुद से सीखा. आई फील कि आई हैव अंडरस्टूड that stories are around us in the smallest and the biggest of things that we are doing or even observing. So anyone and everyone around us like is telling us a story or is sharing something that can be made into a story. और वो कहानियां बेसिकली उस क्यूरियोसिटी से आई कि अच्छा ये मेरी लाइफ में हो गया, अब मुझे इसके बारे में लिखना है. और लिखते लिखते मैंने उस चीज को डिकोड किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प होने लगा. सो आई टेक वर्कशॉप्स ऑल्सो ऑन स्टोरी टेलिंग विच इज अबाउट हाउ राइटिंग इज सेल्फ डिस्कवरी. मैंने आज तक अपनी हर कहानी खुद को सांत्वना देने के लिए, खुद को समझाने के लिए, खुद को डिस्कवर करवाने के लिए लिखी है. एंड इट इज अ वेरी सेल्फिश थिंग दैट आई डू. आई हैव नेवर रिटन माय स्टोरीज फॉर पीपल एक्सेप्ट फॉर द ब्रांड स्टोरीज दैट आई राइट. है ना, पैसा कमाने के लिए अपना जो भी बेचना पड़ता है वो मैं बेचती हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू द आर्ट फॉर्म, द creating things that I do for myself or things that I'm not getting paid for, I have worked really hard on discovering things from the smallest of incidents that happen to me or that make sense to me and convert them into a story जिससे मुझे समझ आए, और अगर मुझे समझ आ रहा है तो सामने वाले को भी समझ आ रहा है. This has been the way that I discovered कि ये तरीका है करने. सिर्फ कॉमेडी में नहीं, वो किसी भी चीज में. आई राइट शॉर्ट फिक्शन और आई राइट फॉर फिल्म्स और आई राइट सॉन्ग और व्हाटएवर. तो हर जगह मेरा सिंपल ये है, फंडा ये है कि मुझे पसंद आना चाहिए, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, जिन्होंने ऑलमोस्ट सेम किताबें पढ़ी होंगी या ऑलमोस्ट सेम धक्के खाए होंगे दुनिया में, या जो भी बहुत सारे रिलेटेबल फैक्टर्स होंगे, और सेम लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी होगा, तो उनको वो पसंद आएगा. दिस इज एन अजम्पशन, बट आई एम नॉट इवन गोइंग बाय दैट अजम्पशन. आई एम जस्ट गोइंग बाय कि मुझे सीरियसली अपने ही माँ बाप के बारे में भी बहुत कम चीजें पता है आज भी, 40 साल के बाद भी. आई स्टिल डोंट रियली नो हाउ व्हाट दे रियली लाइक. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेकंड गेस एन इमेजिनरी ऑडियंस. इम्पॉसिबल. मतलब वो मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं ये वाली लाइन लिख दूंगा तो ये मेरठ में या इंदौर में या कहीं भी लोग पागल हो जाएंगे उसके लिए. वो नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ. सो व्हाट आई कैन डू इज ओनली write what amuses me in comedy. And I have a very simple this thing, news, क्योंकि दिन भर आजकल देखते भी रहते हैं, और हमेशा से I have a simple notepad kind of a thing, जिसमें मैं जो भी चीज मुझे what the fuck लगती है सीरियसली, ठीक है, और वो फिर वो बार आपको बढ़ाते जाना पड़ता है. शुरू में आपको कोई बहुत ही बेसिक सी चीज भी what the fuck लग सकती है कि हाँ ठीक है वो मतलब, बट ये न्यूज जैसे देखी ना, I don't know the punchline. I don't know where it can go. But if something is what the fuck, simply I just note it down. उसकी स्टोरी बाद में मिलेगी मुझे. So for me, it's simply what the fuck एक हमेशा से रहा है कि देखो उसको. If instant reaction is what the fuck, there will be a punchline. There may be 10 punchlines, and then we'll have to find out which is the better one through workshopping, through whatever. मेडिटेटिंग, whatever, जो भी धीरे धीरे पता चलेगा. बट फॉर मी द ओनली ऑडियंस इज माई सेल्फ. मतलब मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ इस बात से कि, और तूने जो ये बात कही मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है इस बात से कि अगर मुझे समझ में आ रहा है तो दूसरे को समझ आएगा. बिकॉज ये चीज मैंने भी पढ़ी है, खुद एक्सपीरियंस भी करी है कि जर्नल करना, अपने इमोशंस को लिखना सेल्फ डिस्कवरी का सबसे बड़ा टूल है. इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ बेटर, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ. एंड आपको एक ही काम करना है, अपने साथ समय बिताना है, अपने थॉट्स के साथ, और उन्हें अलाइन करके पेपर पे लिखना है. इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर, योर डिसीजन मेकिंग विल बी बेटर 100%. लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये दुनिया को भी समझ में आएगा, ये कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है. दैट्स व्हाई आई रिसर्च, रीड एंड अंडरस्टैंड कि नहीं
ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए रिसर्च लगेगी कि आई हैव टू रीड अबाउट इट. आई एम नॉट दैट अनअपोलोजेटिकली रॉ कि भाई चले गए और वनिका की तरफ बोल दिया, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू लर्न. ये पॉडकास्ट बनाने का रीजन, क्रिएटिविटी परस्यू करने का रीजन, ये सब चीजें वही हैं कि आप अपने इनोवेशंस और खोलो और एक बेटर फुल प्रोफाउंड आर्टिस्ट बनो. सो दिस इज समथिंग आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट की हमारी कॉन्वर्सेशन से, जो हमारी अब तक नहीं हुई है इतनी बार, कि तूने सोच लिया कि मैं तो यही बात करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए. और पता है मुझे ऐसा लगता है कि माय फोकस इज कि मुझे ना ये कॉन्फिडेंस तब मिला जब लोग मेरे साथ रेजोनेट करने लगे. और उसके लिए आपने हिम्मत दिखाई ना स्टेज पे जाने की. उससे पहले आपने स्टेज पे जाने की हिम्मत दिखाई. हाँ, स्टेज पे जाने की हिम्मत मैंने दिखाई क्योंकि उस टाइम पे मेरा मोटिव ये नहीं था दैट आई वांट टू क्रिएट आर्ट टू ब्रिंग अ चेंज और डू एनीथिंग अबाउट इट. मेरा बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं था. मेरा मोटिव ये था, मेरे साथ एक कहानी हुई है और मुझे वो बांटनी है. और पता है वो सबसे प्योर मतलब मोटिव होता है जाने का, जिससे क्या है ना, आप बहुत ही अनफिल्टर्ड तरीके से अपनी बात रख पाते हो और वो दूसरों तक पहुंच पाती है. I feel that there are great storytellers in the world, but the best ones are the raw ones, जो कि बहुत flawed होते हैं, है ना, जिनमें अगर एक क्रिटिक बैठे तो बोल सकता है कि ये कैरेक्टर टॉक्सिक है, weird है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है. But I think the most flawed stories are the most beautiful and relatable stories. Because life is like that. Exactly. देखो जैसे अगर मैं ऑडियंस हूँ, है ना, for example, if I am going to attend a show, if I see someone who has outperformed themselves, brilliant performance, mind-boggling performance, मैं उनको देखूंगी, ताली बजाऊंगी and I'll get inspired by it and I'll be like, oh my god, mind fuck कर दिया, बहुत बढ़िया इंसान है. But if I see someone being honest on stage, जो स्टैमर कर रहा है, जो फंबल कर रहा है, जो बहुत ही रॉ तरीके से अपनी बात रख रहा है, रिलेटेबल बात रख रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरी तरह है. And then I'll personally connect with it. I'll forget the person that I found brilliant, but I'll always keep the person that I found relatable within me. True. जब मैंने जाकिर खान का तथास्तु, जो अभी प्राइम पे भी रिलीज हुआ है, वो देखा था लाइव ऑडियंस में, उससे पहले मेरी लाइफ बहुत मेस्ड अप थी. एंड आई रैंडमली डिसाइडेड कि अब मैं ये लाइव शो देखने जाऊंगी. मैं ऑडियंस में बैठी थी 4 घंटे, मैं रोई हूँ, हंसी हूँ, सब किया है मैंने. एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक, वनिका, what he feels on stage is what you can feel on stage, and I know you will do it. And you're capable of doing it. So just start writing your 1 hour thing. उसका जब वो देखा था तब मैंने डिसाइड किया कि मैं लिखूंगी, और जब उसका रिलीज हुआ तो मैंने अपना टूर कंप्लीट किया. So nice. I know I can do it, but there is someone out there who's talking to everyone but making me feel like I can do what he's doing, and that is the most beautiful part. ये बहुत सही बात बोली इसने कि there are some artists who you think यार मुझे कैसा बनना है, and there are some artists कि यार इनके जैसा मैं बन सकता हूँ because मेरी rhythm मैच करती है इनके साथ. जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ये सोचते हैं. जो इनकी जो ये दुनिया में देखते हैं वही मैं देखता हूँ दुनिया में. हाँ, उन लोगों के साथ हमारा बहुत वियर्ड रिलेशनशिप होता है. हम उनसे जेलस भी होते हैं कि वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर रहा. We also love them for what they are doing. It's a weird relationship, but it is also a relationship like love, the strongest form of love, जहाँ पे झगड़ा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है. और बाकी दूसरी जगह अगर सिर्फ एडमिरेशन है, सिर्फ फैसिनेशन है, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी ना, तब तक वो रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा. Anyone who has been a part of your journey knows very well that you have a very on-off relationship with your parents about in the context of your professional life. Initially, they were not on board. Then they came. Then they were not allowing you to do some other thing. But you are always making your own choices. कभी लड़के, कभी मनाकर, कभी वो थोड़ा सा मान रहे हैं, कभी आप उन्हें मना रहे हो. And still you were able to make your choices. It has been a struggle in your life, जो तेरी storytelling में भी दिखती है, तेरी बातों में भी दिखती है. तो I would like to know, I would like you to elaborate on it. कि भाई कैसे वो बदले या वो नहीं बदले, या उन्होंने क्या टेक रहा उनका आपकी इस पूरी 2 साल 3 साल की जर्नी में, जहां से आप एक ऐसे प्रोफेशन में चले गए जिसका नाम भी नहीं पता और जिसका क्या फ्यूचर है तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन you kept growing. And it's not only storytelling. Then you started traveling with your picking experiences. You become an influencer. These all 3-4 things are so new
that and traditional thinking parent or any even my parents would not understand paying experiences क्या है, उनको समझाना पड़ता है कि वो देखो वो बुलाती है अपने मतलब वो इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ लोग घूमना चाहते हैं, तो this is very new for them. So you have been doing you have been dabbling into unconventional professions throughout. So did they understand? Did you make them explain everything? Did they understand? Or like नहीं जितना समझते हैं ठीक है, मैं तो मेरी life जियूंगी. So it's very interesting because anyone who tries to do something different, Indian kids have to take their parents on board. Yeah. यार मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मम्मी पापा ही हैं. ठीक है, मैं एग्री करूँ ना करूँ, उनका मूड खराब होता ना तो मेरा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है. और अगर वो खुश होते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी 1% भी अपना एक्सप्रेस कर देते हैं तो मेरी तो दिवाली हो जाती है. तो I think I've shared a very sensitive relationship in both the ways. Like it's so beautiful that it is sensitive, है ना, and it's not. It's hanging, है ना, like a bridge. मैंने जब अपना मेरी लाइफ में एक मेजर चीज ये रही है that I never wanted to be like my parents, है ना. Not because they're not great at what they're doing. It's just I wanted to change my course of life because I, as a kid, saw them suffering through the course that they chose for themselves. They're beautiful people, but उन्होंने जो choose किया अपने लिए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि they were suffering, and because they were suffering, we were suffering. And I believe कि there is nothing as perfect parenting. They're doing the best they can. But I wanted to like get something more in my life. मुझे वैसा नहीं करना था. I did not want to. I wanted to even break it for them. मुझे उनके लिए भी वो कोर्स ब्रेक करना था. So I decided that मेरे मन में जो आएगा ना, जो भी it will take from me to change the course of my life, I'm going to do it. And first step was moving out from Jaipur to Bombay after like dropping law, management, and then take mass media out of random. पहले मेरे को घर पे बहुत सुनाया गया, but then they were on board. मतलब ज्यादा भी नहीं सुनाते to be honest, है ना. बस थोड़ा सा ब्लैकमेल करते हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वो करते हैं. पर मेरे लिए क्या है ना कि मेरे आई एम सो सेंसिटिव टुवर्ड्स माय पेरेंट्स दैट इवन इफ दे आर सेइंग द लिटिलेस्ट ऑफ थिंग्स, मेरे को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाती है. एंड स्टोरी टेलिंग के बारे में तो उनको पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा हो रहा है. एनजीओ उनके बारे में उनको पता था. तो मैंने हमेशा से एक चीजें ये की है कि मुझे समझ आ गया कि इंडियन पेरेंट्स को आप करके दिखा दो, फिर समझाओ. ठीक है, अगर आप करने से पहले समझाओगे ना तो वो समझेंगे नहीं. तो इसीलिए मैंने हर चीज पहले कर दी है, चाहे झूठ बोल के की हो, चाहे थोड़ा मैनिपुलेट करके की हो, पर मैंने कर दिया. एंड ऑल दिस व्हाइल वन थिंग दैट आई हैव स्टेड ट्रू टू वाज माय इंटेंशन. आई न्यू दैट आई वाज नॉट disappointing them, I was not doing wrong to them because my intention was right. Because I was still very close to, I was not trying to hurt them. मतलब हम लोग कभी झूठ बोलते हैं ना अपने मम्मी पापा से, तो हम ना बहुत डर जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हम गलत कर रहे हैं और चीज में हम बहुत फकअप कर देते हैं. बट मुझे लगता है कि अगर आप अपने इंटेंशन से ट्रू हो, अगर आपको पता है आप सही चीज कर रहे हो, सिर्फ अपनी फाइट को थोड़ा ईज करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर चलता है. दैट इज समटाइम्स द वे टू डू इट. नेक्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क इज कि ये मेरा थोड़ा पर्सनल सवाल है कि जब हम फ्रैंकली स्पीकिंग शूट कर रहे थे ना, आई गॉट टू नो कि यू आर अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मर. तुझे ज्यादा स्क्रिप्ट में बाउंड करो तो तू अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, तुझे मजा नहीं आता. सो यू लाइक कि इसको छोड़ दो. तो द रिलेशनशिप, द ट्यूनिंग दैट वी हैड ड्यूरिंग दैट दो शूट्स वर, कि मैं तुझे अपनी स्क्रिप्ट्स के 5 हाइलाइटिंग पॉइंट्स बताऊंगा कि देखिए ये तुझे बोलना ही बोलना है, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड देन यू समहाउ beautifully curate them in the storytelling format. Whether it's मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका जो आउट्रो है, हमारा जो वुमेन वाला एपिसोड है, why urban women don't work in India, and उसका जो आउट्रो है उसमें सिर्फ तुझे मैंने पॉइंट्स दिए थे, you summarized it and it is really nice. Or another thing which I like is जो स्कूल वाला एपिसोड है, Did School Prepare Us for Adult Life, उसकी स्टार्टिंग जो मैंने कहा था कि स्कूल हमें प्रिपेयर करता है बट कुछ चीजों की प्रिपेयर नहीं करता है. बट द वे यू पुट कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिला, मेरी मम्मी पापा से अभी भी नहीं बन रही है, मैं उन्हें कैसे समझाऊं, तो ये सब तो स्कूल ने सिखाया नहीं. दिस इज ऑल यू एंड यू डिड इट ऑन इन फ्यू सेकंड्स. मतलब सिर्फ बात हुई नहीं का चलो रोल करो मैं करता हूं. सो इट्स रियली वो मैजिकल सा दिखता है. तो बट मुझे पता है कि तू अपने ब्रेन में काम करती है, आई हैव सीन यू प्रोसेसिंग इट. सो आई वांट टू डीप डाउन इन योर ब्रेन कि कैसे होता है. मतलब जब तुझे कोई आइडिया आता है तो तेरा ब्रेन कैसे काम करता है,
So take us briefly through your processing that you're working. I think I'm the center of my own universe. जो भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे लिए किसी भी चीज को समझना तब आसान हो जाता है जब मैं उसे अपने एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर सकूं. I've never been a theory person. मतलब अगर आप एक बुक पढ़ा दोगे मुझे जिसके बारे में मुझे जीरो एक्सपीरियंस है तो बहुत डिफिकल्ट होगा वो मेरे लिए पढ़ना है. फिर मुझे उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा. वो चीज मैं उतने पैशन एंथुसियाज्म से नहीं पढ़ पाऊंगी. पर यही कोई चीज है जिसको मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रेजोनेट कर पा रही हूँ, जिससे मुझे लग रहा है मेरी लाइफ पे एक बहुत ही क्रेडिबल इमोशनल इम्पैक्ट आएगा, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. तो इसीलिए whenever somebody tells me anything, my first thought is how is it related to my life? And once I have a personal experience that gives me a backup and gives me a basic understanding of what I'm trying to say, then I can get incidents and then put it to people. So इसीलिए अगर मुझे कोई पूरा ऐसा दे दे लिखकर कि ये है, मैं बहुत घबरा जाती हूँ, मेरे से नहीं होता है. पर अगर आप मुझे बोल दो कि ये कम्युनिकेट करना है, ऐसे से करना है, ये पॉइंटर्स है, तो मैं उस चीज को बेस्ट वनिका वे में बोल के, कहानियां सुना के, इंसिडेंसेस बोल के कर सकती हूँ. सो दैट इज माई थिंग एंड आई थिंक it is something that I like doing. It's a easier way to do things for me. But शायद कुछ लोग हैं जो स्क्रिप्ट्स प्रेफर करते हैं, लिखना प्रेफर करते हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीका है ना, वो भी एकदम ग्रेट तरीका है. बट मेरे लिए आई एम नॉट अ थ्योरी पर्सन. आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रैक्टिकल लाइक पर्सन, जिसको लाइव परफॉर्म करने में, ऑन द स्पॉट चीजें बोलने में, मैं फनी भी ऑन द स्पॉट हो जाती हूँ. मैं अगर जोक्स लिखने की कोशिश करूंगी, मैं कभी जोक्स नहीं लिख पाऊंगी. रिसेंटली आई होस्टेड ओपन माइक्स एंड आई रियलाइज आई एम सो फनी, लाइक आई एम सो वियर्डली फनी, एंड काफी मजा आया था उस चीज में. बट देन आई रियलाइज्ड इफ आई सिट डाउन टू राइट दीस थिंग्स आई वोंट बी एबल टू डू इट. Do you want to marry me? Do you? Don't do this kind things to me. मुझे आदत नहीं है. ठीक है, ऐसे वाओ मत बोलो. मैं शादी कर लूंगी तुमसे. So it comes naturally to me, and if I want to structure it, then what I can do is, as you did rightly with me, और जिससे मुझे बहुत हेल्प हुआ कि आपने मुझे पॉइंट्स दे दिए थे और उन पॉइंट्स को फॉलो करके मेरे अंदर एक स्ट्रक्चर आ गया, नहीं तो मैं हेवाई हो जाती. So now that is what I'm trying to accept, like adapt in my life as well. That's what creativity is, ना. You decide कि मैं point A पे खड़ा हूँ और point B पे जाना है, रास्ते मैं डिस्कवर करूंगा. That's creative thinking. जब आप एक रास्ता डिसाइड कर लेते हो और उसको बेटर करते हो अपने स्किल सेट से, that is critical thinking. कि मैं रास्ता डिसाइड कर लिया, अब मैं पेड़ पौधे लगा रहा हूँ, अच्छा डामा डाल रहा हूँ, उसको बहुत ही उसका लाइट वाइट लगा रहा हूँ, which is like making it good. That's critical thinking. But when you decide कि मुझे A point से B point पे जाना है, and you find how many ways I can reach to B point. That's creativity. एक चीज जो मैंने इसमें नोट करी वो ये है कि जैसे तूने कहा कि तू हर चीज अपने साथ रिलेट करती है लाइफ एक्सपीरियंस. अब वो तेरे लिए वर्क करता है being a 22-year-old because you have been always outside of your house, traveling, talking to people. You're very curious as a person, taking new experiences in your life. यही अगर कोई बहुत ज्यादा outgoing इंसान नहीं है, extrovert नहीं है, बहुत लोगों से बात नहीं करता, बहुत ट्रैवल नहीं कर रहा उसने अपनी जिंदगी में, तो कभी कभी आपको ऐसा टास्क मिलेगा जो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे. You will not be able to relate. Exactly. जरूरी नहीं आप ट्रैवल करो, आप बाहर निकल जाओ और आप सोचो कि अगर मैं वनिका की तरह एकदम उसका पाथ फॉलो करूंगी तो होगा. नहीं. You can start noticing things that are around you. Just be little more aware of what is happening inside you and outside you. थोड़ा और डीप जाना चाहता हूँ मैं तेरे प्रोसेस में, तो क्योंकि it will be helpful for me also and all the people who are watching कि फाइनली एक स्टोरी टेलर स्टोरी क्रिएट कैसे करता है. तो समझ तेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, तो हाउ डू यू डेवलप इट टिल द टाइम इट गोज ऑन द स्टेज? व्हाट इज द प्रोसेस? लिखते कैसे हो, फिर उसको प्रैक्टिस कैसे करते हो, फिर स्टेज पे जाते हो तब कुछ कैसा फील होता है, और फिर फाइनली स्टेज के पीछे कोई रिचुअल करते हो, एंड हाउ विल यू मेक फ्रॉम A to Z? तो मैं आपको अभी एग्जांपल देती हूँ किस तरीके से मैंने अपना शो लिखा जो 1 घंटे वाला है. बेसिकली मेरे पास एक थॉट था कि आई वांट टू टॉक अबाउट माय गिल्ट. ठीक है, जो एक गिल्ट मेरे साथ बचपन से चला आ रहा है, उसको मुझे उसके बारे में लिखना है. नाउ आई स्टार्टेड डेवलपिंग ऑन इट कि व्हाट आर माय करंट थॉट्स अबाउट इट. डेवलप किया, तो डेवलप करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं यार, देयर इज समथिंग मिसिंग इन इट. सो आई देन
started developing more on it. डेवलप से So- क्या मतलब है? डेवलप से मतलब ये है कि आई रोट माई फर्स्ट थिंग, और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैंने लिखा तो मुझे ऐसा लगता था दैट द लाइफ दैट आई स्पोकन अबाउट वो बेसिकली आई ट्राई टू इमोशनली मैनिपुलेट पीपल इनटू गेटिंग व्हाट आई वांटेड एंड दैट इज व्हाई आई लाइड. तो मैंने इस थॉट के साथ शुरू किया कि किसी को भी ये नहीं करना चाहिए, ठीक है. उसके बाद जब मैं लिखने लगी तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम लाइंग. सो इट्स अबाउट माय डेवलपमेंट इज questioning everything that I feel is not completing the story, or is maybe leaving a problematic end, or an end that I do not agree on, or is not giving me a proper structure to my story. If my story is not like getting completed, it means it's incomplete. So I need to figure it out. It's like ईशान फ्रॉम तारे जमीन पर, वो बीमार था, वो झूठ बोलता था, लेकिन वो क्यों बोलता था ये जानना जरूरी था. So that question I asked myself, and then I was drawn back to my past, where I realized that there was a traumatic incident that had happened in my childhood, जिसकी वजह से मुझे लगा कि in order to get attention that I deserved, I need to lie. So that is how it started. Then I understood that part. ना अब मैंने वो पार्ट समझ लिया, अब मैं इसको अपनी करंट लाइफ में कैसे वो करूंगी. So that then became something else. So it is constant questioning that happens. तो मेरी एक और आदत है कि मैं अपने आइडिया ना आई शेयर विद डिफरेंट पीपल. आई लाइक टू टेक ओपिनियंस फ्रॉम पीपल जो मुझे रैंडमली ऐसे लगता है कि अच्छा, शुड आई टॉक टू माई बेस्ट फ्रेंड हु हैज नो आइडिया अबाउट व्हाट स्टोरी टेलिंग इज, और अ प्रोफेशनल पर्सन हु हैज ऑल द आइडिया इन द वर्ल्ड अबाउट व्हाट स्टोरी टेलिंग इज. सो आई टॉक टू ऑल ऑफ देम, बट ओनली टेक फ्रॉम देम व्हाट मेक्स सेंस टू मी. ठीक है, वो लोग मेरे अंदर वो कीड़ा डाल देंगे कि ये सही नहीं है, बट वो सही क्यों नहीं है तुम्हारा रीजन मैं कभी नहीं लूंगी अगर मैं उस रीजन से नहीं मानूंगी. आई फाइंड माय ओन रीजन. सही बात है. सो माय प्रोसेस इज वेरी मेसी. माय प्रोसेस इज आई वांट टू फिगर दिस थिंग आउट, है ना. आई हैव अ क्वेश्चन, आई वांट टू राइट अ स्टोरी अबाउट इट एंड फिगर इट आउट. अगर वो पहले ड्राफ्ट में लिख जाती है, इसका मतलब है आई हैव ऑल द एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्टोरी. बट इफ इट्स नॉट कंप्लीटेड देन आई गो ऑल आउट. It's the messiest process possible. But उसमें pointers ये है कि first I talk to people. I talk about my idea so that I can get opinions from other people. And I also filter out what I get from them as feedback. I don't take all the feedbacks. Secondly, मतलब कभी भी मैं ऐसे नहीं बैठती कि चलो कहानियां लिखते हैं, है ना. I on an everyday basis try to figure out छोटी छोटी चीजें जो हो रही है, और notes में मैं छोटा छोटा लिख लेती हूँ. And then, if I want to write a story about it, I pick one thing that is currently giving me, my intuition is telling me to take it, या फिर जिसके बारे में मुझे ज़्यादा समझ है, जिसके बारे में मुझे एक थॉट का क्लैरिटी है, वो लेके मैं उस पर डेवलप करना शुरू करती हूँ. और मेरे पॉइंटर्स हमेशा ये रहता है that it has to be about self discovery. It has to be about, because that is my forte, है ना. ये मैं समझ गई हूँ. पहले मुझे लगता था मैं क्यों ये थ्रिलर विलर नहीं लिख पाती, बट अब मैं समझ गई हूँ ये मेरा बेस्ट फॉर्म है. So my stories are about self discovery. My stories are about a girl 22-year-old trying to figure her life out. बहुत messy है, पर she's trying to figure her life out, make sense of things that are happening to her. And thirdly is while writing my stories, I also keep in mind the things that sell in the market. As I told you कि marketing वाला चीज खून में ही है, कि किस तरीके से उसे बोलना है. अब यही सेम बात मैं बहुत ऐसे भी बोल सकती हूँ, पर अगर इस तरीके से बोलूंगी तो शायद इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा एंड पीपल विल बाय इट मोर. सो टेकिंग नोट ऑफ दैट एंड स्टिल बीइंग ट्रू टू व्हाट आई वांट टू से, उसका बैलेंस बना के आई पुट माय फाइनल स्टोरी. जब लिख रहा होता है पोएट, तो हो सकता है उसकी आंख में आंसू लिखते वक्त, इसलिए कोई ट्रेजिक बात लिख रहा है, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा होता है कहता है ये वर्ड मत यूज करना, वो वाला ज्यादा अच्छा रहेगा. तो वो क्लेवरली भी बता रहा है उसे, नहीं ये देखो ये तो थोड़ा मीटर से बाहर जा रहा है, इसमें ये हटाओ. तो ये भी तो चल रहा है साथ में, जबकि दूसरी तरफ वो उसकी आंखों में आंसू. तो ये एक तरह की स्प्लिट पर्सनालिटी आर्ट में होती है, जो दो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही एक साथ. So there are stories जो मैंने वन गो में लिखी है, और एक कुछ स्टोरीज हैं जैसे ये इत्तेफाक वाला, मुझे 1.5 साल लगा इसे लिखने में, पर आई एम ग्लैड इट टुक 1.5 years बिकॉज इट एक्चुअली सॉर्टेड माई लाइफ. मुझे अपना ट्रॉमा पता ही नहीं था, मुझे अपनी चीजें पता ही नहीं थी.
And because of this story, because of storytelling, I was able to figure my life out, and that is why I feel like storytelling is not an art form for me. It's not a dream for me. It's basically a search. है ना? एक line है कि बाकी सब दौड़ में है, मैं खोज में हूँ. So the moment your story becomes your discovery and not your fight to deliver that perfect story, it will come out on paper. So let it be that discovery. Let it be you figuring your story out, finding it out, delivering it. And not being like, I want to win this story. You can't win a story. You can't get a story. I 100% agree with you, and I can resonate with you because I think figuring out तो आप कर ही रहे थे life में. But like then I would like to add up on this. I like to confess कि podcast बनाना, job छोड़ना, podcast बनाना, frankly speaking बनाना was still me figuring out कि मैं YouTube कर सकता हूँ क्या, मैं podcast बना सकता हूँ क्या मैं creative हूँ क्या. But making this series, it's been 2 years. हमारी 2020 में बात हुई थी कि हम ये शूट करेंगे, and it's आते 2023 आ जाएगा. Right? It's almost 2 years, complete 2 years to figure out कि हाँ ये मेरी जर्नी थी to discover कि what is creativity और क्या-क्या चीजें होती हैं, क्या जर्नी में चाहिए होता है, मुझे क्या-क्या समझ में आया मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, and this is what I'm putting out. I don't know this will work or not, but I know that this is my discovery. Exactly. It sorted me out, and that is why इत्तेफाक मेरा जो show है, it is not, मतलब I did 7-8 shows around the country, and I am now planning to give it a pause till an unlimited point in developing a new thing, as I told you, because I realized कि यार मैंने figure out कर लिया, मेरा जो purpose था उस writing का वो पूरा हो गया. अभी performance में शायद मैं इतना वो नहीं हूँ because there is something incomplete in that performance part of it, which I want to figure out, but right now I can't, so I'm taking a break with Ittifaq because it's very heavy. It's about my trauma. And being able to talk about your traumas, people say कि अपनी real life story सुनाना बहुत आसान बात होती है, पर नहीं होती है. आपकी फट के हाथ में आ जाती है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा it consumes you. Storytellers are truth seekers, and to tell your truth to 100 people on a stage is like being naked and then being confident about it. वही ना. And you know, अभी I get so many comments कि यार she's an attention seeker, she's this, she's that. But I think I'm doing what I know how to do, what I am figuring out about my life. And to be honest, there will be a day when I'll die and you will not care about me. So currently when I'm living, I don't want to care about you and what you think. That's encouraging because that's inspiring also. मैं समझता हूँ कि क्यों तेरे इतनी सारी फैन फॉलोइंग है कि वनिका जो बोलती है ना तो जोश आ जाता है. स्टेज पे जब लेके जाते हो तो नर्वसनेस होती है अभी भी, या लगता है कि मेरा तो बटन ऑन नहीं रहता? नहीं, आई थिंक अब पहले मेरा लड़कों के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप हुआ करता था, अब स्टेज के साथ है. It's always very scary, especially because you know I got things in my life a little early than everyone else. This is, for example, I have found people who like struggled for 5-6 years and then they got platform, then they got videos on YouTube, and I got it in the second year even when I was not looking for it, and then I even got like people who loved my work. So all of it happened like too fast. Even though I worked really hard for it, I questioned everything and there was so much emotional struggle, but on the top of it, it happened very quickly. So मेरे को बहुत ही ज़्यादा imposter syndrome consume करता है. मुझे ऐसा लगता है that I'm a fraud and people are going to feel that I am a fraud someday and people are going to question and they will know who I am. I feel very scared about it. और I'm learning to deal with it. और मुझे लगता है कि अभी मैंने कहीं पढ़ा भी था कि imposter लड़कियों में इसलिए ज़्यादा होता है या फिर हम लोगों में, I think Indian people में ज़्यादा होता है because we are not really validated in our immediate circle as a child. हमें हमेशा अगर ऐसा बोला जाता है कि ये तो ठीक है और क्या है ना, इससे बेटर मार्क्स कब आएंगे, तो हमें कभी प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन मिला नहीं अपने अपनों से जो हमें सबसे ज्यादा मैटर करते हैं. इसीलिए जब दुनिया हमें वो वैलिडेशन देती है तो हमें लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं. However, what I know about my relationship with stage is कि I've never felt
like so much alive in any corner of this world, and I've traveled to so many places. मैं अभी स्पीति गई थी, तब भी शायद मैंने इतना लाइव नहीं फील किया जो मैं 5 मिनट स्टेज पे खड़ा होके फील करती हूँ. Like I'm literally center of my own universe and I'm talking about myself. I feel like talking helps me a lot. क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे thoughts हैं, और ऐसा होता है ना कि एक घड़ा होता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो अगर आप उसमें और पानी डालोगे तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा. अब मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स और कॉन्स्टेंटली आते हैं. दिस इज समथिंग विच आई हैव गॉट इन विरासत फ्रॉम माई मदर. ठीक है, शी ऑल्सो हैज द सेम वे, शी थिंक्स टू मच. सो नाउ इफ आई वांट टू प्रोसेस एंड understand these thoughts and make sense out of it and live in a good relationship with my own mind, I have to talk, I have to process it. And storytelling, writing poetry, doing hosting, है ना, it's all me talking and putting my thoughts out so that I feel peace in my mind. So it's like survival to me. Being on stage, being in front of camera, talking, or normally talking is survival to me. It's like my first survival instinct, and I think I've understood it by now. पहले ये मेरे लिए ऐसा था, मेरा ड्रीम है, ये है वो है, but now it's survival for me. It's very basic. So I know I have to do it. इसी सीरीज पे एक और गेस्ट है, फरीन अमान. उन्होंने भी सेम बात करी. शी इज अ आर्ट एजुकेटर, तो वो ड्राइंग्स वगैरह बनाती है. लाइक कि वो जॉब भी करती है और आर्ट भी क्रिएट करती है. मैंने कहा बैलेंस कैसे करते हो? बोले आर्ट नहीं होगी तो मैं कुछ भी बैलेंस नहीं कर पाऊंगी. तो आई हैव टू, मेरा दिमाग शांत नहीं होता जब तक मैं ड्राइंग. एंड शी कैन ड्रॉ, शी कैन स्केच व्हाइल ट्रैवलिंग, सिटिंग इन अ प्लेन. और मतलब अच्छा एपिसोड है, यू शुड चेक इट आउट जब बाहर आएगा एवरीवन. तुझे याद है जब मैंने तुझे अप्रोच किया था ना फ्रैंकली स्पीकिंग के लिए, और जब इस पॉडकास्ट के लिए 2020 में तेरे 16 के फॉलोअर्स थे. आई रिमेंबर बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद यू, तो आई फिगर आउट कि क्या सिस्टम रहेगा. एंड जब तक हमने शूट किया और हम रिलीज कर नहीं पाए, तब तक तेरे 36 के फॉलोअर्स हो गए थे. ठीक है, 2021 की बात है, स्टार्टिंग में. एंड नाउ यू हैव क्रॉस 3.5 lakhs. It happened in just 1 year. As you were saying कि बहुत जल्दी हो गया सब कुछ. So what has changed? मेरे लिए तो तू चेंज नहीं होगी. हम तब भी साल भर पहले भी ऐसे ही बात कर रहे थे, अभी ऐसे ही बात कर रहे हैं. So what you have learned in this year? What has changed for you? How social media manage करना सीखा होगा, तो कैसे अपने लाइफ के साथ ये सब मैनेज किया? मैंने जो चीजें सीखी इससे, सबसे पहले ये था कि इसने मुझे बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया टू डू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू. Like it gave me more space to take risks in my life because I knew I had a backing, और उससे मैं चीजें कर सकती हूँ, like starting pink experiences and making money out of it and not depending on my writing. तो उसने मेरे को काफी स्पेस दिया, काफी इंडिपेंडेंस दिया, काफी रिस्की होने का स्पेस दिया. तो वो चीजें बहुत अच्छी हुई. उसके बाद it also helped me understand that basic things work the best. और मुझे अपने आर्ट फॉर्म को एक्सेप्ट करने में इस चीज ने हेल्प करवाया व्हेन आई गॉट एक्सटर्नल वैलिडेशन. ठीक है, वो इंटरनल वैलिडेशन चलता रहता है, पर जब तक पैसा नहीं बनता तब तक आपको मजा नहीं आता है ना. इट्स बिकॉज यू वांट टू बी वैलिडेटेड, यू वांट टू बी रिवॉर्डेड फॉर व्हाट यू आर डूइंग इन सम वे और द अदर, बट यू वांट टू बी रिवॉर्डेड समवेयर ऑन द इनसाइड. तो वो चीज हुई. थर्डली मेरी फैमिली के साथ भी काफी अच्छा हुआ बिकॉज दे सॉ मी ग्रोइंग and they saw me making money out of it. So I got family support as well. But what it gave me, along with all of this, was firstly that responsibility. है ना, कि यार मैं कुछ भी कह देती हूँ और सामने वाले लोग इतना बिलीव कर लेते हैं. And they're following me with all their heart. So now I have to be responsible. And that responsibility comes with guilt. Sometimes you don't perform your best or you say wrong things and then you realize कि मैंने तो पिछली बार गलत बोला था, and people are still believing in it. So it comes with guilt of whatever you are doing, कि it is impacting people's life. Now your life is no longer your life. It's connected with so many lives. So that guilt, that regret, that stress also increases. So that is there. उसके साथ साथ I think it's always a mixed feeling when I go somewhere and people are like, oh, you are Kyra, I know you. It's good because I realize that my art is reaching places and यार लोग मुझे जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है. बट साथ में ना बहुत अजीब सा भी लगता है at times that my life is no longer my own. It's of so many people. So that scares me, but it also gives me hope that now I have the ability
to create the change that I always wanted to see in the world. Now I want to move to the business side of your profession. आप जो मीडिया कंपनीज के साथ काम करते हो, जैसे कम्यून हो गई, पेपर टेल हो गई, टेरिबली टाइनी टेल्स हो गया, अनइरेज पोएट्री हो गया, सो यही लोग हैं जो आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको ब्रांड्स ला के दे रहे हैं. So what's the business aspect of it? As a storyteller, what is the relation between a storyteller these days and these media companies? And how the business works? यार बेसिकली ना हम उस जमाने से बाहर निकल गए हैं जब तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना चलाएगा. बेसिकली they can teach you how to, they can also tell you the way, they can give you all you need, but आपको करना खुद ही पड़ता है. For example, there are so many people in the community now. We are fighting for the same things, and we are like, मतलब हम लोगों को सेम ब्रांड्स के लिए काम करना है. तो अभी बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज एक ही कंपनी सबको मैनेज करती है. सो फ्रॉम देयर यू गेट द एक्सपोजर और तुम्हें वो रास्ता मिलता है, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही पड़ता है और फिगर आउट तुम्हें खुद ही करना पड़ता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी एज अ स्टोरी टेलर, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. Firstly, you need to realize that do you want to do this full time or do you want to make like a second option, ताकि तुम सारा प्रेशर अपना पैसे पे ना डालो to sustain. क्योंकि अगर उधर डालना है तो आपको ज्यादा पुश करना पड़ेगा अपनी स्टोरी टेलिंग को, अपने आर्ट को ज्यादा निचोड़ना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी मोर फ्रस्ट्रेटिंग एंड दैट विल नॉट गिव यू द फ्रीडम दैट यू वांट विद योर आर्ट फॉर्म. अभी यू कांट बी रिजिड, क्योंकि वो जमाने गए जब आप बोलो कि मैं रोटी कपड़ा मकान के साथ अपना जीना चला लूंगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. राइट नाउ वी ऑल वांट मोर एंड दैट इज हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स. सो वी हैव टू मेक मोर मनी. तो इसीलिए मेरा जो सीन था वो यही था दैट आई विल नेवर बी एंटायरली डिपेंडेंट ऑन माई स्टोरी टेलिंग, एंड दैट इज व्हाई क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस जिस पे आई वर्कड एज अ क्रिएटर. देयर आई एम पुटिंग माई स्टोरीज बट आई एम वर्किंग एज अ क्रिएटर, है ना. मैं वहां पे वही कंटेंट बनाती हूँ विद सेल्स, कंटेंट दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, कंटेंट दैट इज इजी टू मेक. सो दैट इज माय आइडिया विद देयर. और ऐसा नहीं है कि वो खराब है या फिर दैट इज नॉट माय आर्ट फॉर्म. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माय आर्ट फॉर्म, बट आई क्रिएटेड स्पेसिफिकली, माय इंटेंशन बिहाइंड इट is to reach it, like make it reach to more people. That is my intention behind it, because that will give me what I want. Secondly, was starting my travel company Pink Experiences, ताकि मेरे को वहां से पैसा आए और मुझे अपना सारा प्रेशर अपने आर्ट पे ना पड़े. और मेरा आर्ट यहाँ पे स्टोरी टेलिंग है, मतलब एक लाइव स्टेज पर स्टोरी टेलिंग करना है. सो राइटिंग इज अ स्किल, माई आर्ट फॉर्म इज स्टोरी टेलिंग. तो कहानियां किस तरीके से लिखकर मैंने उसको इंस्टाग्राम पे डाला और अपना साइड इनकम क्रिएट किया टू बी एबल टू सस्टेन इट. And that is one way to do it, that you create multiple options for yourself to get your work done. Second is that you basically do workshops, storytelling workshops करो, आप storytelling professor बन जाओ, आप बहुत सारे events करवाओ, है ना. तो आपको multiple ways निकालने पड़ेंगे to make money out of it. When it comes to these companies like Tate Patel and Erase, they manage us, they help us with our reach, they help us with sometimes getting the brand. But they are not making a plan for us on how to make money. That is what we have to take an initiative on our own. खुद से करना पड़ता है वो. नहीं, कोई नहीं करके देगा, कोई नहीं बोलेगा ओ यार इस बंदी में पोटेंशियल है, मैं इसको स्टार बनाऊंगा. ये सिर्फ मूवीज में होता है या फिर पहले के जमाने में होता होगा. राइट नाउ एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ स्टार ऑन देयर ओन फॉर देयर ओन बेनिफिट. तो जैसे पहले हमने बात करी थी कि क्रिएटिव शॉर्ट्स के हर एपिसोड में मैं एक कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और इस एपिसोड का कॉन्सेप्ट है एवरीथिंग इज अ स्टोरी. तो इस पूरी बात को, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट रेडी किया है, इस पूरी बात को कुणाल शाह जो क्रेड के फाउंडर हैं, उनका एक ट्वीट है, वो काफी अच्छे से समराइज करता है. आई विल रीड इट आउट फॉर यू. वो लिखते हैं, वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय स्टोरी टेलर्स एज दे कैन मेक अ लार्ज ग्रुप कोऑपरेट टुवर्ड्स अ गोल लाइक नो वन एल्स. इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, बट कैन दे कन्विंस पीपल. ऑल ह्यूमन रूल्स आर मेरली पॉपुलर ओपिनियंस एंड एनीवन दैट कैन शेप ओपिनियंस कंट्रोल्स एवरीथिंग. एवरीथिंग इज अ स्टोरी and we live in millions of stories. Storytellers सबसे पावरफुल लोग होते हैं क्योंकि वो आपका अटेंशन होल्ड कर पाते हैं, स्पेशली इन दिस एरा जहाँ पे अटेंशन की इतनी कमी है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो वहाँ एक ट्रू स्टोरी टेलर
आपका अटेंशन ग्रैब कर पाता है, और अगर वो अच्छा है अपने स्किल में तो आपका ट्रस्ट भी ग्रैब कर पाता है, और फिर उनके द्वारा कही हुई कहानी आपकी नई रियलिटी बन जाती है, राइट? So it's a very powerful medium. You are in a very powerful state कि आप लोगों की रियलिटी एडिट कर सकते हो. So did you realize this thing? Did you agree with? अब आप स्टोरी टेलर बन गए हो, तो do you agree with this? Do you realize कि हाँ ऐसा कुछ होता है, सच झूठ के बीच की जगह है, आप कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हो? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं. मैं खुद के साथ करती हूँ. सबसे पहले तो मैं अपनी कहानी का पूरा इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे, मतलब अपने इंसिडेंट्स का इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे पूरी तरीके से कहानी लिखकर ही बदल सकती हूँ. This is what I've realized. I have processed, expressed, understood, changed my emotions like after writing stories. So I totally agree with it, and I think stories are the most important part, because the only thing that matters in our life is stories. The only thing that matters to us currently is stories. Like, for example, you quoted Kunal Shah, but there are too many Kunal Shahs. I don't care about Kunal Shahs, but I care about his statement because there is a story that I know about him. That he comes from a background where he has created something and changed the history by doing something major. So the only reason why he matters to us is because of his story. तो हम लोग कहानियों से ही चेंज करते हैं अपनी पोजीशन, अपना इम्पैक्ट इस लाइफ पे और दूसरों की लाइफ पे. और वी आर वेरी लाइक मैनिपुलेटिव. और मैनिपुलेटिव होना बुरा नहीं है जब तक तुम उसे एक सही इंटेंट के हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हो. मैनिपुलेशन इज नॉट ऑलवेज स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा, ठीक है, वो अलग चीज होती है. बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड और लाइक get a positive impact of anything and everything that is happening to you and make sense out of it and be a better human and create a better life for yourself through writing a story, then I think manipulation through a story is good. और मतलब हमारे बचपन में भी कैसे हमारे मम्मी पापा हमें हाथी घोड़ों की कहानियां सुनाकर moral values सिखाते थे. They were also telling us lies, to be honest, and still the intention of their lies was right because they were trying to teach us a good thing. हमारे बचपन में हमारा एक्सपेक्टेशन लाइफ के लिए गलत सेट हो गया था. क्या कि हम लोग के पेरेंट्स ने हमको ईमानदारी की कहानियाँ सुनाए थे, ठीक है, फेरी टेल सुनाए थे. क्या कि मिडिल क्लास के पास देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता, वो लोग ईमानदारी दे देते हैं. मिडिल क्लास का पूरा रहता है कि हम लोग के पास खाने के लिए कुछ ना हो, हमारे पास अपना घर ना हो, पर हमने कभी अपना ईमान नहीं बेचा. लड़ा, तुम्हारा ईमान खरीद कौन रहा था बे? कभी किसी को बोलते हुए मैंने नहीं सुना रथ साहब का ईमान मिल जाए तो बस. ईमानदारी के लिए हमको बचपन में स्टोरी सुनाए थे कि एक उड़ कटर रहता है, उड़ काटने के लिए जाता है, ठीक है, उसका एक्स गिर जाता है और रोने लग जाता है. स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए कि बैकअप एक्स रखा करो. एक तो हमारे स्टोरी में लीड कैरेक्टर भी नौकरी पे जा रहा है, ठीक है. फिर देखो ट्विस्ट के साथ है, मर्क्यूरी भगवान निकलते पानी से और बोलते हैं कि ये गोल्ड वाला एक्स तेरा है क्या? वो बोलता है नहीं मेरा नहीं. एक तो ये स्टोरी से ये सीख मिलता है कि ईमानदार रहना चाहिए. क्यों? क्या कि मर्क्यूरी भगवान उसको गोल्ड और सिल्वर का एक्स दे देता है. हमारा माँ बाप हमको लालच दिखा के ईमानदार बना रहा है. सोचो कितना फक्ड अप चीज है ये कि ईमानदार रहोगे सोना चांदी मिलेगा. तो अल्टीमेटली सोना चांदी ही चाहिए रहा ना. फिर हम ईमानदार चले जा रहे हैं, सोना चांदी नहीं मिल रहा है कहीं भी. कितने बार मैं पानी वानी में गया, मरकरी भगवान निकल नहीं रहा है. ये फेरी टेल्स की वजह से मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है. तो मैंने अपने बच्चों को डिसाइड किया कि ये फेरी टेल्स नहीं सुनाऊंगा, मैं दूसरा फेरी टेल्स सुनाऊंगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकल फेरी टेल्स रहेंगे. और their intention behind it was to make us a better human. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आपने बात बिल्कुल सही कही कि we have the power. और कहानियां, मतलब आप सोचो ना कि कहानियों से I went to Goa that day and I saw that there were big temples of Kamakshi and all of these idols, all of these devtas, they're all stories, right? And we are believing, हम लोग religion story है ना, हमारा जो structure है वो एक story से चलता आ रहा है. Everything is a story. Right. And सबसे बड़ी बात तूने बोली कि तुझे ये बात समझ में आ गई, which is मुझे पूरा जर्नी लगा 1 साल समझने में कि हाँ मैं फाइनली, इसलिए that's why I kept that episode with you and that's what I could share with you. मतलब the reason to have you as the guest
कि यार ये वनिका ही समझेगी ये बात, क्योंकि वो खुद ये बात करती है. बट इसमें जो सबसे बड़ी बात तूने बोली ना कि हर कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोपेगेंडा है. कहानियां अच्छी चीजों के अच्छे इम्पैक्ट के लिए भी सुनाई जा सकती हैं. एंड यू हैव दैट इन यू. आई हैव टॉक्ड टू यू सो मेनी टाइम्स दैट यू हैव इट इन यू कि मेरी कहानियों का इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए. With great power comes great responsibility, and you are on the right track according to me. So thank you so much for explaining us that way and keeping your intentions right as a storyteller. It's a very powerful medium. Yeah. Thank you so much for listening to this podcast. I hope this conversation with Vanika helped you understand that storytelling is the ultimate skill that every artist must learn. We can't imagine what a good story can do. It's the most powerful tool in the world, and that's why its demand is always omnipresent. This brings us to the end of this series. अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो and hit that like and subscribe button. You can also reach out to us on Instagram and tell us how you feel about our work. Till then, keep creating, keep exploring, keep learning. This is your host, Lakshay Arora, signing off. Bye-bye.